آج کی یہ عبادت کا جو دن جمعے کا ہے اور اس جمعے کی عبادت کے لیے ہم شکر گزار ہیں. جیسے 2025 کے اندر بھی ہم نے خدا کے حضور شکر گزاری کی ہے. آج یہ جمعے کی جو عبادت ہے 2 تاریخ ہے. ہم اس جمعے کی عبادت کے اندر 2026 کے اندر ہم شامل ہوئے ہیں. ہم تمام عزیزوں کو اس سال کے اندر خوش خبری کی منادی کا کلام سنانے کے لیے اس بات کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ لوگ خدا کے کلام کی خوشخبری کو سنیں. اور تمام سننے والے لوگوں کو اس 2026 میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں تاکہ آپ اس سال کے اندر اپنے ذہن کو اپنی سوچ کو خدا کی طرف لے کر چلے اور کہے میں نے خدا کے حضور آ کر خدا کے کلام کی خدمت کا پرچار کرنا ہے. میں نے کیا کرنا ہے 2026 کے اندر اقرار کرے تو میں نے آ کر 2026 کے اندر خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کے کلام کو پرچار کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. تو عزیزو خدا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. خدا یسوع مسیح جلد آنے والا ہے تو لوگوں کو تیار کرنا ہے. عزیزو وقت بالکل قریب ہے. جیسے 2025 آپ نے بڑی سپیڈ سے دیکھا ہے, بڑی سپیڈ سے 2025 گزرا ہے. 2026 کا جو پہلا جمعہ ہے 2 تاریخ ہے اور اس سال کو بھی دیکھنا بڑی سپیڈ سے گزرے گا. لیکن اس سال کے اندر آپ اس بات کا ویژن رکھیں. آپ اس بات کا کیا کریں ویژن رکھیں, لوگوں کو بتائیں تو میں نے خدا کے کلام کی خوشخبری کا پرچار لوگوں تک بیان کرنا ہے تاکہ 2026 کے اندر خدا مجھے ایک سلامتی کی خوبصورت صحت دے, تندرستی عطا کر تاکہ میں تیرا کلام کی آواز تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں. عزیزو جتنے بھی آج اس کلام کو سننے والے ہیں میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو تیار کیا ہے. خدا نے آپ کو تیار کیا ہے. خدا نے آپ کو بنایا ہے. خدا نے اپنا بیٹا یسوع مسیح دے کر اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا ہے اور خدا نے آزاد کیا ہے. اس لیے تاکہ ہم نے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کا پرچار خدا کے لوگوں تک کرنا ہے. جب ہم خدا کے کلام کا پرچار کرتے ہیں تو عزیزو یہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہو سکتا. یہ وقت آپ کا بابرکت ہو سکتا ہے. اس وقت کے اندر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ آپ خدا کی حضوری کے اندر وعدہ کرنا ہے کہ 2026 میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے بابرکت ہو تاکہ میں خدا یسوع مسیح کی خوشخبری ان لوگوں کو دوں گی, ان لوگوں کو دوں گا جو خدا کی حضوری کے اندر خدا کی حضوری کے اندر کو خدا کی حضوری کے اندر لے کر آنا ہے تاکہ وہ خدا کا کلام خدا کے لوگوں تک پہنچانا ہے. سو آج 2026 کے اندر جب خدا کی حضوری کے اندر آج خدا کے کلام کو بیان کر رہے ہیں, عزیزو اس کلام کو سننے کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے تاکہ وقت اخیر ہے, بے دینی بڑھ چکی ہے, محبت ٹھنڈی ہو چکی ہے. خدا کی حضوری کے لیے وقت قریب ہے. خدا یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آنے والا ہے. خدا یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آنے والا ہے. آپ اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے ہمسائے کو تیار کریں اور اپنے تمام عزیزوں کو تیار کریں. جب آپ خدا کے کلام کی خوشخبری کی منادی کریں گے اور آپ کے کلام سنانے کے سبب سے آپ یسوع مسیح کی گواہی سنانے کے سبب سے ایک گنہگار بچ سکتا ہے. ایک گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے. ایک گنہگار اپنی بدیوں سے بھاگ جا سکتا ہے. ایک گنہگار خدا کی حضوری کے اندر تھر تھراتا ہے اور کانپتا ہے اور کہتا ہے خدا میں تیری حضوری کے اندر وعدہ کرتا ہوں تاکہ 2026 کے اندر میں تیرا کلام قبول کرتا ہوں, میں تیرا کلام قبول کرتی ہوں. عزیزو اس کلام میں جب آپ خادمین کو دیکھتے ہیں تو ہر روز جگہ بے جگہ آپ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ طریقے کے اندر نہ رہے, لوگ گناہ کے اندر نہ رہے, لوگ بدی کے اندر نہ رہے, لوگ نافرمانی کے سبب سے خدا سے دور چلے گئے ہیں. اس لیے خدا نے اپنے خادموں کو مقرر کیا ہے تاکہ خدا کا کلام خدا کے لوگوں تک پہنچے, لوگوں کے کانوں کی کھڑکیاں کھل دے اور خدا کی حضوری کے اندر اس بات کو بیان کرے اور کہے یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. عزیزو بالکل یعنی کہ 2026 خدا نے دیا ہے.
इस दिन के अंदर हम लोगों को जगाएं, लोगों को बेदार करें, लोगों को खुदा का कलाम सुनाए। अजीज और मुकद्दस, आज खुदा के कलाम की तरफ आपने तवज्जो करनी है। खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है तो किस तरह हमने बेदार रहना है, किस तरह अपने ईमान के अंदर मजबूत रहना है। तो आज कलाम मुकद्दस पर चंद मिनट तवज्जो करेंगे, चंद वक्त खुदा के कलाम को सुनेंगे। मैं खुदा के मुकद्दस कलाम को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील है, उसका 14 बाब है। यूहन्ना की इंजील है, आज जिसका 14 बाब आपके सामने पेश किया जाएगा, तलावत किया जाएगा। आज 14 बाब की पहली आयत से लेकर 4 आयत तक कलाम मुकद्दस पर गौर करेंगे और खुदा के कलाम को खुदा के खादिम पढ़ने में रहनुमाई जाएंगे। चौदह में पहली आयत से 4 आयत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर मुझ पर भी माना। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। आज के मुकद्दस कलाम अजीजो, हमने खूबसूरत यूहन्ना की मार्फत इस कलाम मुकद्दस को जाना है। कलाम मुकद्दस में आज यूहन्ना की झील उसका 14 बाब की तलावत की गई है। 14 बाब की तलावत के अंदर मुकद्दस यूहन्ना 14 बाब की पहली आयत के अंदर लिखते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर अमान रखते हो और मुझ पर भी अमान रखो। सबसे पहले अमान की जरूरत है। हमने अपने अमान को मजबूत करना है और तरह तरह की आजमाइशों के अंदर जब पड़े तो आपका अमान जड़ा है ये मजबूत होना चाहिए। अमान के सबब से आप निजात पा सकते हैं, अमान के सबब से आप रिहाई पा सकते हैं, अमान के सबब से आपकी आजमाइश मुकम्मल हो सकती है। और कलाम मुकद्दस में खुदा का कलाम आपने पढ़ा है और लिखा गया, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम मुझ पर अमान रखते हो और मेरे बाप पर भी अमान रखते हो। कलाम मुकद्दस, तुम खुदा पर अमान रखते हो और लिखा है मुझ पर भी अमान रखो। देखिए, जब खुदा पर अमान रखते हो तो मुझ पर भी अमान रखो। किस बात पर अमान रखो? कि खुदा यीशु मसीह जिंदा है, खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया है, खुदा यीशु मसीह आसमान से फिर जमीन पर आएगा। अजीजों, इस बात पर हमने क्या करना है? अमान रखना है। इस बात पर क्या रखना है? अमान रखना है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इस बात पर अमान रखना है। यीशु मसीह कलाम मुकद्दस में लिखा, अगर जब अमान रखते हो और मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, अजीजों उस मकान के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। उस मकान में अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जब हम जिस्मानी मकान की बात करें तो जब इस घर के अंदर एक जमीन खरीदते हैं, इस घर के अंदर जमीन खरीदने के बाद अपने घर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जब तैयारी करते हैं तो फिर दोबारा जब आपका मकान तैयार होता है, अपना घर तैयार होता है, तो उस घर के अंदर कितने खुशी से आते हैं, कितने खुशी से शादमानी करते हैं, कितनी खुशी से शुक्रगुजारी करते हैं और इस बात से कहते हैं, हमने अपना घर जमीन पर बनाया है, अपना घर जमीन पर बनाया है। लेकिन जिस्मानी घर के अंदर आप कितने खुश होते हैं, कितना सुकून पैदा करते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनके मकान अपने नहीं, वो किरायों पे जाते हैं, किरायों में रहते हैं, लेकिन जब उनको अपना खुदा तौफीक देता है, अपना घर बना लेता है, तो उस घर के अंदर जब रहते हैं तो उनको कितना सुकून होता है। अजीजों, अगर जिस्मानी घर के अंदर सुकून है तो जो रूहानी घर है, जिसके मतलब यीशु मसीह ने फरमाया है और कहा है, मैं आसमान पर जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, जहां मैं हूंगा वहां तुम होगे।
अजीजों, कितना खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया है। उसने किया तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर अमान रखते हो तो मुझ पर भी अमान रखो, क्योंकि मैं जाता हूँ आसमान पर तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। अजीजों, इस घर के लिए जो आसमान पर तैयार किया गया है, जो खुदा का बेटा यीशु मसीह आसमान पर हमारे लिए घर तैयार करता है, और उसी ने बड़ा खूबसूरत वादा किया है, जहां मैं होगा वहां जहां मैं होगा वहां तुम होगे। कौन लोग होंगे जो खुदा यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारते हैं, जो सुबह शाम खुदा की हजूरी के लिए इबादत करते हैं, जो खुदा का हजूरी के अंदर जिनकी निगाहें आसमान पर लगी रहे हैं, जो जिनके दिल खुदा की हजूरी के अंदर अमान के अंदर मजबूत है, और लिखा है उनकी आंखें आसमान पर लगी रहती है, क्योंकि आसमान पर खुदा का बेटा यीशु मसीह बाप की दाहिनी हाथ बैठा हुआ है। यानी कि आसमान पर, यानी कि खुदा का बेटा यीशु मसीह बाप की दाहिनी हाथ बैठा है, लेकिन हमने उस पर निगाह करनी है। लेकिन वो हमारा इंतजार करता है, और वो कहता है अपने आप को दुरुस्त करो, अपनी राहों को दुरुस्त करो, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है राह को जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर अमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा दी। इस वास्ते अजीजों, ये खुदा का कलाम हमें बताता है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि इसलिए तुम खुदा पर अमान रखते हो, मुझ पर भी अमान। लेकिन जब अमान इस बात पर है तो खुदा यीशु मसीह आसमान पर गए हैं। तो यीशु मसीह आसमान पर कहते हैं मैं जाकर तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। फिर लिखा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं, फिर आकर मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, जहां मैं होऊंगा वहां। कौन होंगे जो खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, जो खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं, जो खुदा के साथ अपना दिल देते हैं, जो दिन पर रात अपने खुदा की हजूरी के अंदर कदूस कदूस पुकारते रहते हैं, उसकी हमदो सना करते हैं, और खुदा की हजूरी के लिए उन्होंने अपना वक्त दिया है। अजीजों, आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी खुदा के लोग हैं, और खुदा का कलाम फरमाता है, ये खुदा यीशु मसीह पर हमने क्या रखना है, अमान रखना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए कहाँ गए हैं, आसमान पर गए हैं। क्या बनाने गए हैं, घर बनाने के लिए है, और उसने घर के अंदर लिखा है मैं तुम्हारे लिए मकान तैयार करता हूँ, फिर आकर मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, फिर मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, जहां मैं होऊंगा वहां तुम होगे। अजीजों, आज खुदा यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहते हैं, और खुदा का कलाम फरमाता है लेकिन तुम उसकी राहों को जानते हो, तुम उसकी राहों को जानते हो। वो राहें कौन सी है, खुदा यीशु मसीह के साथ मेल और मिलाप का रास्ता है। जैसे 2026 आया है, 2026 के अंदर अपने आप को तैयार करना है, और इस बात को याद रखना है कि खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं, लेकिन वो फिर जमीन पर आने वाले हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं आसमान पर जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, लेकिन जहां मैं होगा वहां तुम होगे। कितना खूबसूरत खुदा ने हमारे साथ वादा किया है। इस वादे के मतलब जब खुदा के कलाम में लिखा है, खरूज की किताब उसका 23 बाब की 25 आयत के अंदर भी खुदा ने एक वादा किया है, और फरमाया तुम मेरी इबादत करना, तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारी रोटी और पानी पे बरकत दूंगा, और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। लिखा मैं तेरी उम्र जमीन पर की करूंगा, पूरी करूंगा। लेकिन अजीजों, जो इबादत खुदा के कलाम के मुताबिक हमें करना चाहिए, खुदा का कलाम फरमाता है, खरूज की किताब आपने पढ़ा है, उसके अंदर लिखा तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी पे बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा, मैं तेरी उम्र जमीन पर की करूंगा, पूरी करूंगा। लेकिन हमने क्या करना है, खुदा की इबादत करनी है, खुदा की तारीफ करनी है, खुदा की तमजीद करनी है, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा खुदा है, खुदा वादों का सच्चा क्या खुदा है। उसने कहा जहां मैं होगा वहां तुम होगे। कौन लोग होंगे जो अपना वक्त, अपना दिल अपने खुदा को देते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है जो खुदा के हकामों पर अमल करते हैं, जो खुदा के हकामों पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। खुदा के हकाम क्या है,
तू किसी की ऐबजोई ना कर। खुदा के हुकाम है, तू किसी वास्ते बुरा ना सोच। इस वास्ते खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तो मुझ पर और मेरे बाप पर क्या रखो, अमान रखो, क्यों मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान ने, मैं जाकर तुम्हारे लिए की करना, जगह तैयार करना, मैं तुम्हारे लिए की करना, जगह तैयार करना, फिर तुमने अपने साथ आके ले दूंगा, जहां मैं होऊंगा वहां तुम होगे। अजीजो, आज ये खुदा का कलाम हमें जिंदगी देता है, ये खुदा का कलाम अब्दी निजात देता है, ये खुदा का कलाम हमेशा के घरों के अंदर लेकर जाना चाहता है। तो आज के कलाम मुकद्दस के सबब से खुदा मुझे और आप सबको और सुनने वाले तमाम घरानों को बरकत दे, और अपने आप को तैयार करना है ताकि हम आसमानी घरों के अंदर जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। खुदा आपको और मुझे सुनने वाले लोगों को बेहद बरकत दे। आमीन।